if you look down at the bubble जो नीचे है, at the low concentration of the substrate, the velocity of the reaction is known as the first order reaction. That is the proportional to the substrate concentration. And if you increase the amount of substrate, the reaction velocity will also increase. Are you clear about this now? Yes, ma'am. You should be able to order what are answer what are first order and what are zero order reaction. ठीक है. अब अगर figure 5.11 पे आप आएंगे तो इसको क्या है? This is a Lineweaver-Burke plot. ठीक है. Lineweaver-Burke plot जो है आपका, इसमें हमने क्या लिया? हमने इनवर्स V नॉट ले लिया, इनवर्स V मैक्स ले लिया, इनवर्स सबस्ट्रेट ले लिया, इनवर्स Km ले लिया. What is the purpose of doing it? Instead of getting a hyperbolic curve, we get a straight curve, the straight line. Now this straight line is going to intersect the x-axis as well as the y-axis. Where it intersects the your आपकी जब ये उसको intersect करती है y-axis को, उसको हम as inverse v max लेते हैं, और ये जहाँ जाके hit करती है आपकी x-axis को, that is the measurement of the Km. Okay? Yes, no? इसको हम यूज करते हैं जब हम अपनी एंजाइम इनहिबिशंस पढ़ते हैं. मैकलिस-मेंटन इक्वेशन हम कहाँ यूज करें? जब हम एक्सक्यूज मी जब हम अपनी इनहिबिशंस पढ़ रहे हैं. ऑलराइट, which is then our next topic, and this is inhibition of enzyme activity. So we are going to talk about 4 inhibitions. So these are the competitive inhibitions, the non-competitive inhibition. We are going to talk about uncompetitive inhibition, and we are going to talk about allosteric inhibition or enzyme inhibition. बहुत important portion है. जैसे आपका जो initial आपकी energy curve थी ना, वो फिर what are the reactions of taking place at the enzyme at the site जो है आपकी enzyme substrate active site पे, वो इस पे भी question, ये भी बहुत important question आता है आपके enzyme में. ठीक है. The different inhibition you may be asked कि enumerate करें inhibition, explain competitive, explain uncompetitive, ऐसे भी आपको question आ सकता है. All right. So competitive inhibition में हमने क्या चीजें देखनी है? Now I'm going to tell you कि कौन सी चीजें एग्जामिनर के कान tuned into hearing, जिसमें आप वो बताते जाते हैं, आपका मार्क्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इंक्रीज होते जाते हैं. और जब हम क्वेश्चन चेक कर रहे होते हैं तो at one glance in your answer, what are the points that we are looking for? जो बच्चा वो सारे पॉइंट्स लिखेगा, ऑब्वियसली उसके मार्क्स आ रहे हैं. जो उसमें से मिस करेगा, 3 लिखेगा कम है, 2 लिखेगा कम है, जो 1 लिखेगा वो प्रॉब्ली फेल ही हो जाएगा. ठीक है. So competitive inhibition में आपने first thing जो लिखनी है जो आपको पता होना चाहिए कि in this the inhibitor is a structural analog of the substrate. वो structurally similar है to the substrate. और as a result, it is going to compete with the substrate for the active site on the enzyme. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Effect of Vmax का आएगा. The effect, if you look at page 60 now, we are on page 60. The effect of competitive inhibitor is reversed by increasing the substrate. जब आप substrate की concentration increase होएंगे कर देंगे तो competition तो between the inhibitor and the substrate हो रहा है ना. एक team है उसको आप double कर दो तो it will be able to defeat the other team, won't it? तो जब आप substrate increase करेंगे, effect of inhibitor जो है वो कम हो जाएगा. ये एक point आपको याद रखना है. फिर आपने ये देखना है कि what is going to happen if you look at figure 5.12. ठीक है. इसमें आप देखेंगे कि आपका Michaelis-Menten जो आपका Km है ना, वो apparently is increased in the presence of a competitive inhibitor. ये बड़ा important है. आपने अपना inhibitor आपने पहले बताना है structure, point number 1, structural analog है कि नहीं है, and what is the site at which it is going to attach. So first thing आप inhibition में mention करेंगे कि कौन सी साइट पे वो लगता है. तो obviously structure analog है तो तभी साइट पे लगेगा, तभी वो एंजाइम के साथ compete करेगा ना. नंबर 2 जो आप उसका बताएंगे कि एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज इसको इनहिबिशन को डिक्रीज करेगा या इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन द इनहिबिशन. नंबर 3 आप बताएंगे in competitive inhibition what happens to the Km. Now in competitive inhibition, as you can look at figure 1.2, competitive inhibition increase कर जाती है, इनमें Km increase कर जाता है. Why does the Km increase?
बिकॉज अब आपकी एक्टिव साइट पे इनहिबिटर भी आके लग रहा है, सो अफिनिटी फॉर द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट इज डिक्रीज्ड. यस नो? Yes, ma'am. अगर आपके 15 मॉलिक्यूल हैं या 20 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 को आके इनहिबिटर लग गया, 10 को आके सबस्ट्रेट लग गया, तो एज कंपेयर टू जब 20 को आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना था, तो ऑब्वियसली केएम डिक्रीज हो गया ना, ऑलमोस्ट हाफ हो गया. Yes. तो ये आपने मेंशन करना है जब आप इनहिबिशंस मेंशन करते हैं. दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू हियर. बस ये नहीं खाली कह के छोड़ देना जी स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है, एक्टिव साइट पर लग जाता है और कंपीट करता है. नो, ये आपने डिटेल्स बतानी है. जो बच्ची ये ग्राफ पे बनाएगी उसका तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और डॉक्टर फायदा तो फुल मार्क्स देती है 5 आउट ऑफ 5. हम लोग जरा बड़े थोड़े से स्टिंजी हैं, हम लोग जरा मैक्सिमम मार्क्स को थोड़ा कम रखते हैं, 4.5 तक लेके जाते हैं. सो नेक्स्ट जब आपने देखना है कि मैक्सिमल वेलोसिटी वी मैक्स को क्या होता है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है जो आपने देखना है. वी मैक्स जो है वो कहते हैं इट रिमेन्स सेम इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंपेटिटिव इनहिबिटर. नाउ व्हाई डज दिस हैपन? क्या इसलिए ये आपका वी मैक्स रहता है कि ये आपका at a sufficiently high substrate concentration, all your substrate is, all your enzyme is going to be saturated, और सारा substrate enzyme के साथ लग जाता है. तो Vmax जो है ना वो it remains unaffected. Maximum velocity of the reaction वही होएगी, ठीक है. End में end product initially may be a little slow, and then with competitive inhibition, if you look at then the maximum velocity end में वहीं पहुंच जाती है. अगर इसको नीचे एंड तक लेके जाएं तो वहीं पहुंच जाती है. इसको जब आप फिगर 5.14 के साथ कंपेयर करेंगे, if you have your Lippincott in front of you, अगर हम इसको कर्व को towards the end लेके जाए ना तो it reaches Vmax. ठीक है, यहाँ देखें कितना बड़ा गैप है, ठीक है, in your non-competitive inhibition. Can you see the difference? Non-competitive में Vmax decrease करता है, competitive में Vmax remains the same. Why? Because ultimately all the substrate will combine with the enzyme. That is why increasing the substrate concentration will increase the Vmax initially, and in the long term आपका Vmax will be the same. तो आपने क्या चीजें भी याद रखनी है? नंबर 1, structural analog competes with the substrate for the active site. ये मेन चीज है कि वो compete करता है. नॉन competitive में active site के लिए compete नहीं करता. नंबर 2 आपने ये remember करना है कि जी Vmax जो है वो कम हो, उसके लिए जो Vmax है उसकी सेंसिटिविटी कम होती है, तो दैट मीन्स Vmax इंक्रीज होता है. सॉरी, योर Km क्योंकि सेंसिटिविटी कम होती है तो Km जो होता है वो इस रिएक्शन के इंक्रीज होता है. नंबर 3 Vmax है, Vmax remains the same because ultimately the all substrate will combine with the enzyme. Number 4, addition of the substrate will not is going to decrease the effect of the inhibitor. Inhibition can be reversed by adding substrate. Clear हो गया चारों पॉइंट? अब इसका जो बच्ची दे देगी, जो बच्ची साथ एग्जाम्पल दे देगी तो उसको तो शायद मेरा भी दिल कर जाए 5 मार्क्स देने को. वो होगा कि अब आप स्टैटिन्स का एग्जाम्पल दे देंगे. ठीक है, व्हाट आर स्टैटिन्स? स्टैटिन्स आर हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स. ये लिपिड लेवल्स कम करती हैं. आजकल आप सबको पता है कि हाइपरलिपिडेमियास को समझा जाता है एज अ सोर्स ऑफ नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, या कोरोनरी हार्ट की ब्लड वेसल्स, व्हिच लीड्स टू हार्ट अटैक्स. ठीक है ना, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. स्टैटिन्स जो है वो क्या करते हैं? अब हमारे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती क्यों है? वो हम यही अज्यूम करते हैं बिकॉज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल्स आपके ब्लड में ज़्यादा होती हैं. तो इससे क्या होता है कि एक प्लाक्स बन जाते हैं जो सब एंडोथेलियली इन द कोरोनरी वेसल्स डिपॉजिट हो जाते हैं. जब वो सब एंडोथेलियली कोरोनरी वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं तो फ्रॉम योर फिजियोलॉजी यू विल नो कि एक तो ल्यूमन नैरो हो गई है, दूसरा जो आपकी स्मूथनेस ऑफ द एपिथेलियम है, एंडोथेलियम है, वो इफेक्ट हो जाती है. The smoothness of the endothelium इफेक्ट हो जाती है तो वहाँ क्लॉट बनना शुरू हो जाता है. यस, प्लेटलेट एग्रीगेशन होनी शुरू हो जाती है, क्लॉट बन जाता है. ऐसे ही होता है ना, ब्लड पड़ा हुआ आपने फिजियोलॉजी में.